अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, ओहदा और इख्तियार हर किसी को अच्छा लगता है और इसको हासिल करने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर ये उम्मीदें पूरी ना हों तो क्या होता है, आइए चल के गाँव की पंचायत में देखते हैं। अली भाई, ओहदा और अख्तियार एक जिम्मेदारी हुंदी है, बस बंदा इस काबल होना चाहिए। ये चीज़ां ते आप टुर के ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ ਜਾਂਦੀਆਂ क्यों हो रहमिया। बिल्कुल चौधरी साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ? हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਵੱਡੇ ਚੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि गाँव की लंबरदारी मुसलसल इन्हीं के पास रही है और किसी और को मौका ही नहीं मिला। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਏ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओए रहमिया, होश नल अकल नल ये साफियां दे नाल तमीज दे दायरे च रह के गल करी दी है। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਸਲਾਮ ਤਾਇਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਦੱਸੋ ਧੱਕਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦਾ ਹਾਕਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। की कह रहे हैं नेमतुल्ला? ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਡੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਰੇੜੇ ਅੱਗੇ ਜੋਣ ਡੇ ਨੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਓ? ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਆਦਮੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕੀੜੀ ਤੇ ਮਸਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਧਰੂੰਦੀ ਫਿਰੇ ਕੀੜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਜਿਆਦਾ ਬੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਘੋਟੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੜਤੀ ਏ। ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰ ਘੋਟ ਬਸ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਏ? ਜਦ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੂਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਏ? ਆਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਪਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਪਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖਬਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम। ਜਾਵਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ। बबो जी बबो। चाचा, ये चौधरी ने सानू बुलाया क्यों है डेरे ते? ये शहजाद होरी किते फेर तो नहीं जमीन दा रफड़ पाउण लगे? ਉਹ ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਏ? ਰੱਟਾ ਬਾਗ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਰੱਟਾ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਨਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕੇ ਅੱਗੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। बह बई छजादू उत्थे गल है बह नेमतुल्ला। ਹੁਕਮ ਜੀ ਹੁਕਮ। मैं हुन्ना मा शहर क्योंकि बच्चे पढ़दे आ हुण उत्थे। ਜੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ। मैं पिंड आ भी जावां ते मैनू फेर शहर जाना पैंदा है। ਯਾਹਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਏ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ। ਇਹ ਰਾਣੇ ਦਾ ਵਾਹ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। मैं खुश हाँ तेरे स्कूटर तो ਇਹਦਾ ਤੇ ਐਲ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਏ, ਹਰ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਜਾਂ ਮਦਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਖਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਸਟੈਪ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਡਾਂਸ ਦੇ, ਉਹ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ।
ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਲੈਂਕ ਕਿਕ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਹਾਵਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਮਦਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਾਓ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗ। ਰਾਣਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਰਾਣੇ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਸਾਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੀ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾੜੋ ਲਾਓ ਤੀਲੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਇਹਦੀ। ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਵੇਖੀ ਚਾਚਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਵੈਸੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਬਸ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਾਰੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਚਾਚਾ? मदारी केड़ी भी लो जनाब, अपने पांव की मट्टी मत छोड़ना। ये परना 6 फुट ऊपर जाए, उससे भी ऊपर जाए तो कहो जोगी का कमाल है। अगर कोई अपने घर से कोई आटा ना लाए, मैं आटा नहीं लेता, रोटी हो तो ले आओ। ये पुत्र जान दे मेरे आ पुत्रा, झोका अपना परना चाचा मैंने दिंदे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਕ ਪਰਨਾ ਮੇਰੇ ਆ ਬੱਚਿਆ, ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। यार वैसे हद है, आप लोग चौधरी साहब की बात सुनने के बजाय आपस में उलझ रहे हैं। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ ਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਂ। ਭਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਚੋਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਆਹ ਜਦੋਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਮਰਾਦ ਗਬਾਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਖੜ ਪੂੜਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਢੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਬ ਤਰੋੜ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਮਨੂਸ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਵਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਦੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੋ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਕੈਮ ਚੌਧਰੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਖਰਾਬ ਆ ਗਏ ਨੀ ਜੀ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਛੱਡੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਲੰਬੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਵੇ ਜੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜੂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਲਾ ਲਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ, कोई काम डिस्टर्ब ना होवे। ये तो बहुत अच्छी बात है चौधरी साहब, लेकिन बंदा ऐसा ढूंढिएगा जो मेहनत से काम करे, लोगों से उसके ताल्लुकात अच्छे हों, उनकी बात सुने, उनके पास बैठे और उनके मसाइल हल करने के लिए वक्त भी हो। सोचिया तो मैं भी है होई है। अली साहब लभने है कोई इदां दा काबल बंदा। ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ। ਸਦਕੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੌੜਾ। ਅੱਛਾ ਨਿੰਮ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਧਰੇਕ ਖਲੋ ਜਾਏ ਇਮਲੀ ਦਿਆ ਬੂਟਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਓਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਲੂ ਪੁੱਟਣ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲਾ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਰੋਵੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਿੰਡੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ। ਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਐਵੇਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਰੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਮਰਲਿਆਂ ਨੂੰ।
ਤਲੇ ਮਰਲੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੰਗਰ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰ ਜਵਾਈ ਬੀਜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਲ ਖੇਡਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ 3 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰਾਸ਼ ਜੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਮੱਖੀ ਵੜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਮਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਤ। ਆਇਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰ ਕਿ ਵਿੰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਿੱਬੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਾਂ ਨੰਗ ਕੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰ ਓਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੂ। ਹਾਂ ਬਈ ਨਹਿਮਤੁल्ला, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੈਂ? ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕਰੂ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਨੇ। ਮਿਲ ਗਈ ਨੌਕਰੀ, ਮਿਲ ਗਈ ਚੁਦਰਾਹਟ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਖਵਾਓ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਵਾਓ। ਹਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂ ਹੋਈ ਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹਲੇ ਟੁਰਨੀ ਏ। ਹਲਾ ਵਾਹ, ਹਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਲਫ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਏ ਤੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਪੜੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਪੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਲਿਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਬਾਲਟੀ ਕੋ ਭਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਦਮਾਤ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰਿਆ? ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਫੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਪੜ ਜਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਾਵਾ ਇਹ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੱਚੂ ਛੱਪੜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੋਹਾ ਤੇ ਲੈਲਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਹਨੇਰੀ ਕਦੀ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਾਸ਼ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗ 'ਚ ਵੱਜਾ ਮੱਛਰ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਹਾਰਨ ਸੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਨੱਸ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਰਨ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੋਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾੜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਚਾਚਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਬਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਓਏ ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜੀ ਆ। ਉਹ ਬਜਾਏ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਜਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਨਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਆ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਵਾਲੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਠਾ ਚੋਇਆ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਲ ਲਿੰਬਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਜਾ ਪਈ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਛਤਰੇ ਦੀ ਜੱਤ ਵਧੀ ਵੇਖੀ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਲਾ ਮੋਣ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਓ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਖਰੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੜੇਗਾ।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, बड़े टाइम सिर आया चौरी इकबाल। आला दुनिया जी बड़े लोग। चौरी इकबाल नाल भी मशवरा कर लेंदे हां। जी बिल्कुल, ऑप्शन भी बता दें इकबाल साहब को कि राणा साहब और उनके कजन में से किसको बनाया जाए गांव का नंबरदार। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ 4 ਦਿਨ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯਾਦ ਕਰ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਰੀ ਲਟਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਰੀ ਵਿਹੜੇ ਨੇ ਟੱਕਰ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ। ਬੰਦ ਕਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਗਚੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਸਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਰਾਂਡਾ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਖਾਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਣ ਡਿਆ ਫਰੂਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਬਸ ਖਾਈ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਣਾ। मुझे लगता है कि चौधरी साहब के मसले के अलावा हर मसला डिस्कस हो रहा है। अरे भाई, जिस बात पर मुशावरत के लिए चौधरी साहब ने बुलाया है उस पर तो बात कर लें। ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਆ ਬਈ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੈਂ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਝਗੜੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਡਾਂਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ। लो जी, बच्चा बगल में और डिंडोरा शहर में। चौधरी साहब, जब आपका अपना भतीजा दूसरी पंचायतों में जाकर फैसले करवाता है तो आप उसे अपनी गद्दी पे क्यों नहीं बिठा लेते? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚਦਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੋਤੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਚਦਰਾੜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਟਾਣੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਜਾਮਾ ਉੱਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। यार क्या फजूल बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं बन सकता वो चौधरी? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿੰਗਮ ਤੇ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ, 1.5 ਘੰਟਾ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੁਦਰਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਣਾ। ओ भाई, चुदराहट दिमाग से करनी होती है, जोर जबरदस्ती से नहीं। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਵੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਚੌਧਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਦਿਆਂ ਹਰ ਬਿਸਤੀ ਤੇ ਹੱਸਣ ਦਿਆ पाकिस्तान च बंदा ही इदां दा कामयाब है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उर्दू किताबें पढ़ते हुए मुझे नींद आती है, इंग्लिश किताब पढ़ते हुए मैं कभी नहीं सोता। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कई दफा हमारे घरों के अंदर हमारी कोई चीज गुम जाती है जिसकी हमें बड़ी टेंशन होती है और हम ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, वो नहीं मिलती। फिर किसी दिन हम रंग रोगन कराने के लिए 2-3 साल बाद सामान आगे पीछे करते हैं तो वही चीज पेटी के नीचे से निकल आती है। उस वक्त उस चीज के मिलने की जितनी खुशी होती है ना,
वो उसके गुम होने पे उतना रंज नहीं हुआ होता। वाह। और ये सिर्फ घरों में ही ऐसा नहीं होता, बाहर भी ऐसे मामलात कई दफा होते हैं कि बड़ी हंसी आती है। इसी तरह की आपको एक खबर सुनाने लगा। वाह। ये अमेरिका से खबर है। हेनरी फोर्ड की स्वाने उम्री 63 बरस बाद लाइब्रेरी को लौटा दी गई। वापस करने वाले ने बताया कि यह किताब उसे अपनी लाइब्रेरी में मौजूद उन किताबों में से मिली जो उसने अपने दोस्त से हासिल की थी। लाइब्रेरी इंतजामिया के मुताबिक लेट फीस की मद में हजारों डॉलर जुर्माना हो सकता था, लेकिन 2022 में लाइब्रेरी को मुकम्मल तौर पर फीस फ्री कर दिया गया था। मेरा ख्याल है कि जिसने किताब लौटाई है ना, जी जी, वो इसी इंतजार में होगा कि एक करी लाइब्रेरी फीस फ्री हो जावे सही, फिर वापस करन जावांगा, नहीं तो इन्होंने तो मेरे को 6-7 हज़ार डॉलर जुर्माना ले लेना है। यार हर वक्त नेगेटिव ना सोचा करो, किसी और वजह से भी तो लेट हो सकता है। नहीं, और क्या वजह हो सकती है जी? उस शख्स के पढ़ने की स्पीड बड़ी स्लो थी। वो रोजाना 2-3 हरफ पढ़ के तो बेचारा थक जाता था और सो जाता था। ये क्या फजूल वजह है यार। होते हैं ऐसे नलायक स्टूडेंट भी जिनको किताब खोलते ही नींद आनी शुरू हो जाती है। नहीं यकीन तो पूछ लो वो गौरी को। एक्सक्यूज मी, उर्दू किताबें पढ़ते हुए मुझे नींद आती है, इंग्लिश किताब पढ़ते हुए मैं कभी नहीं सोता। यार इंग्लिश किताब खोल दी तो बेचारा टेंशन च पै जाता है। ऐ मैं की कर बैठा वहां। इंग्लिश किताब पढ़ते हुए गौरी को इसलिए भी नींद नहीं आती कि वो पढ़नी तो होती नहीं, उसमें से तस्वीरें ही देखनी होती। वाकई ऐसे लोग होते हैं जो किताब पढ़नी शुरू करते हैं ना जी, तो तीसरी लाइन तक पहुंचते पहुंचते आंखें बंद होने लगती हैं और लफ्ज किताब से निकल के पानी में तैरते हुए नजर आने। हो सकता है इस बंदे ने भी इसी तरह बेचारे ने किताब पढ़ी हो और उसे इतने साल लग गए हों किताब मुकाते मुकाते। या हो सकता है इस बंदे को किताब पढ़नी नहीं थी आती और इसने पढ़ना सीखने के लिए ही किताब लाइब्रेरी से ली हो और हर लफ्ज के हिज्जे कर करके बेचारा पढ़ रहा हो, इसलिए उसे इतने बरस लग गए। बहरहाल वॉशिंगटन की रिच लैंड पब्लिक लाइब्रेरी को यह किताब जो वापस मिली है, ये बड़े मशहूर मुसन्नफ एलन की लिखी हुई किताब थी। और किताब का नाम था फोर्ड, द टाइम, द मैन, द कंपनी। और जो उसने 1962 में इशू की थी ना जी लाइब्रेरी ने, वो अब मिली है 2026 में फरवरी में। 64 साल बाद? जी हाँ, इसीलिए तो मैं ये खबर पढ़ के चौंका। मैंने कहा चल के अपने जैसे सारे दानिश्वरों को बताऊं। आप देखें ना जरा, ये किताब 17 मार्च 1962 को वापस करनी थी, जो फरवरी 2026 में वापस हुई है। यार ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही हो गया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपको सुनाऊंगा तो आपको हिचकी लग जाएगी, इसलिए मुजफ्फर मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आपको हिचकी लगी तो ऐसे ही लगेगा कुकड़ के गले में आटा फंस गया है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना जी, जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड मौजूद है। वाह वाह, जेम्स बॉन्ड, जब तुम पंजाबी में जुगत मारते हो ना तो अजीब सी पर्सनैलिटी झलकती है। यार आप लोगों के लिए मुझे बीच में पंजाबी भी बोलनी पड़ती है, वरना आई कैन स्पीक इंग्लिश। यस। और आप हैरान होंगे सुन के कि ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना जी, जो गिनीज बुक में भी लिखा हुआ है, जी जी, दुनिया में एक किताब 288 साल बाद वापस की गई लाइब्रेरी को। और ये किताब जिस बंदे ने ली थी लाइब्रेरी से, जी जी, उसका लकड़ पर पोतरा करने गया है ना जी वापस किताब, तो जिथे लाइब्रेरी सी उथे अगे तिक्के लगन डे। उसने फिर उससे पूछा कि मेरे लकड़ पड़दादा इधर से किताब लेकर गए थे, इधर तो एक लाइब्रेरी होती थी। उन्हें फिर दसिया कि भाई जी वो फलानी गली से चली गई। उथे फिर अगे गया तो उथे लाइब्रेरी वाली जगह ते पकौड़े कड्डन डे सन, और पकौड़े कड कड के उन्हां किताबां दी वर्कियां ते रख रख के देन डे। उन्हें क्या भाई जी इत्थे ते लाइब्रेरी हुंदी सी? उन्हें कहा यार उन्होंने तो पौने 200 साल हो गए, फलाने चौंक च चली गई। उथे बेचारा पहुंचिया तो लाइब्रेरी वाली जगह ते टांगे वाला अड्डा सी। उथे टांगे वाले कहन डे हन पार्टी वाले पार्टी वाले पार्टी वाले। एक्सक्यूज मी,
ये पार्टी वाले कहाँ से आ गए? आप इंग्लैंड की बात सुना रहे हैं। यार उस वक्त इधर इंग्लैंड ही था, पार्टी जो है ये इंग्लैंड के येरे से आया ही था। यार इसे तो पता है ये इंग्लैंड की किताब थी। यू आर राइट। इंग्लैंड के एक कॉलेज की लाइब्रेरी से 1668 में ली गई थी ये किताब। अच्छा और वापस हुई 1956 में। अच्छा और जब वो वापस करने गया तो लाइब्रेरी के इंचार्ज ने कॉलेज के गेट के ऊपर खड़े होकर गाना शुरू कर दिया। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई। यार फिर अपने पल्ले से जोड़ के सुनानी शुरू कर दी हैं खबरें। आई एम सॉरी यार, मैंने आपको पहले भी बताया कि मिर्च मसाला डालना पड़ता है। अच्छा जी, ये तो हो गई किताबों की बातें। अब आपको एक और बड़ी हंसी वाली और दिलचस्प बात सुनाता हूँ। जी। एक अमेरिकी खातून को अपने वालदैन की तरफ से लिखे गए खत 62 साल बाद मौसूल हुए। यस, न्यूयॉर्क में रहने वाली इस खातून कैरल होवर को जब 62 साल बाद अपने वालदैन की तरफ से लिखा हुआ पहला खत मौसूल हुआ तो वह बेचारी हक्का बक्का रह गई। यह हक्का बक्का ऐसे ही होता है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये खत 1960 में लिखे गए थे और 2022 में मौसूल होने शुरू हुए। वो भी जाहिर है डाकिये के सामने गाना शुरू हो गई होगी, तेरे बिना यूं घड़ियां बीती। डाकिये ने वो क्या होना, मां जी मैंने नौकरी करन दियो। नहीं तो इतने अरसे बाद उसने वो खत पहचाना कैसे? और जनाब पहचाना इसलिए कि खत की जो लिखाई थी वो उसकी वालदा की थी। अच्छा हाँ जी, उसको अपनी वालदा की लिखाई याद थी। वाह और खत भी असली थे वाह। जिन पर 1960 की डाक टिकट और मोहरें लगी हुई थी। अच्छा जी उन्हें ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮੋਹਰ ਦੇ ਚਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓ ਮਾਈ ਗॉड। यार तुम तो ऐसे बताते हो जिस तरह तुम अम्मा जी के पास बैठे हुए थे। अच्छा जी नहीं सी किया जी ਉਹਨੇ ਓ ਮਾਈ गॉड। हमारा ने उछल के डाकिए ते सीने ते दुलत्ती कट मारी सी। यार वो गोरे लोग हैं, सोफिस्टिकेटेड, इतना ही कहते हैं हैरान हो के ओ माय गॉड। ऐसे जेम्स बॉन्ड खत में लिखा क्या था? यार मैं अब अम्मा जी की पर्सनल बातें तो मैं सुना दूं। लीजिए एक और दिलचस्प बात सुन लें। कनाडा में एक बंदे का स्कूल में बटुआ गुम हो गया। अच्छा 1974 की बात है। अच्छा अच्छा वो बटुआ उसे 51 साल बाद मिला। जी हाँ, ओंटारियो के एक स्कूल के स्टाफ ने 2025 में स्कूल के टॉयलेट गिराए हाँ उन्हें बनाने के लिए दोबारा। तो दीवार के अंदर एक बटुआ छुपा हुआ था जिस पर तालिबे इल्म का पूरा नाम पता भी लिखा हुआ था। वाह लज स्कूल का स्टाफ जो है वो सोशल मीडिया के जरिए उस बंदे तक पहुंचा। उस बंदे का नाम था टॉम अस्कोफ। अच्छा जब उसके घर जाकर उन्होंने टली बजाई, वो बंदा बाहर आया तो उसने कहा कि बटुआ आपका कहीं गुम हुआ है। उसने कहा नो भाई, अब इतने 51 साल पहले की बात उसे कहाँ याद होगी। हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा कि यार स्कूल के दौर में आपका बटुआ गुमा था। वो कहते हैं कि ओ आई कॉन्ट रिमेम्बर, स्कूल वाला जमाना मुझे नहीं याद। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ। यार आपके लिए तर्जुमा कर रहा हूँ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ। यार फिर अपने एंकर को पढ़वा लो यार। यार उनको बताओ ना कि तुम जिस दौर से हो उस दौर में अंग्रेजी इतनी होती थी। यार आप दूसरी तरफ निकल गए हैं, सुन लें। उस बंदे ने जब कहा कि मुझे नहीं याद आ रहा, तो जब उन्होंने बटुआ निकाल के उसके सामने किया तो वो रोना शुरू हो गया। उसको पता नहीं क्या क्या याद आ गया होगा। हाय हाय मेरा ख्याल है उसको लाइमन मास्टर जी ने हाथों पे डंडे भी मारे हुए थे, हाय इसलिए वो रोया होगा। वरना बटवा मिलने पे तो बंदा खुश ही होता है। बहरहाल उस बेचारे ने तो कहा कि मुझे नहीं याद स्कूल का जमाना। फिर स्टाफ के मेंबरान ने जब बटुआ जेब से निकाल के उसके सामने किया तो उस बंदे ने गाना शुरू कर दिया, तेरे बिना यार घड़ियां भी। यार बटुए को देख के गाना शुरू कर दिया। भाई जी बटुए च $200-300 पे ऐसी, इसलिए वो गाना शुरू हो गया। जेम्स बॉन्ड वो इसलिए रोया कि उस बटुए में उसकी मंगेतर की फोटो होगी।
ओए ओ यस, इसलिए उसने कहा है, तेरे बिना। जेम्स बॉन्ड तुम गाते बहुत अच्छा हो। मेरा दिल करता है अपने पिंड वांडो तुम्हारा इवेंट रखूं, नाला डेग पे कहूं बैठो पानी में टांगे डुबो और पानी से तुम्हें वापस आवाज आए और तुम्हें पता चले कि सुनने वालों पे क्या बीती है। देख रहे हो तुम, एक गुलूकार की टांगे पानी में डबो के उसे बीमार करना चाहिए। ना इन्हें मैंने पैसे देने ने तो मेरे अगले फंक्शन में मर जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे कजन की शादी आ रही है, मैं तुम्हें भी साथ लेके नहीं जाऊंगा। तेरे कजन दे आते बारिश ही हो जानी। क्या बात है, तुम्हारा दोस्त छाना आज बड़ा मुंह बनाकर बैठा हुआ है। तो पहले कौन सा इसके शक्ल के ऊपर हानिया मडाली स्मेल होती है? ये मेरा दोस्त छाना और मेरा खालू फौरन रुस जाते हैं। हम जब भी अपनी खाला के घर जाते हैं ना, तो मेरा खालू मुंह बना के बैठा होता है, और जब हमारी खाला हमारे घर आती है तो भी मेरा खालू मुंह बना के बैठा होता है। एक बारी ओनू अम्मा दिए, भाजी मुंह ना बनाओ, मैं पकौड़े बनाए हुए ले। बड़ी बेइज्जती हुई होती। अच्छा, हम जब उनके घर जाते हैं तो उस वक्त तो वो मुंह बनाता ही है। तो फिर खाला हो लीजिए कह देंदी है, छो पढ़ाई दा मुंह इस तरह का सुझे आया है, इसी खाओ पियो। तो हमारे घर आके भी तो ये छाना भी अपनी गलती वे भी खुद ही रुस जाता है, तो मेरी गलती वे भी खुद ही रुस जाता है। बताओ बताओ सबको, करो मेरी मशहूरियां, करो मेरी मशहूरियां करो। यार उनके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं तो वो जो सवाल करते हैं फिर उनका प्रोग्राम में जवाब नहीं देते। जब ख्वाजा आसिफ साहब बैठे होते हैं टीवी के ऊपर तो उनको सवाल करते हैं तो वो फिर उसका जवाब नहीं देते। वाह 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 वाह, ये तू ख्वाजा आसिफ है या ख्वाजा आसिफ साहब फीका ने? सवाल गौरी साहब तुसी मुश्किल ही कर लिया। वो भी प्रोग्राम में बैठे होते हैं और मैं भी प्रोग्राम में बैठा हुआ। यार बात को गोलमोल कर लो, जरूर बताना है वो और बात कर लो। गोलमोल क्या? नहीं, बताओ बताओ। वो ना जो मलक साहब है ना, उनका जो बेटा है मलक फरियाद, उनकी बेटी की मलंगनी थी। अच्छा। तो उन्होंने मलंगनी का फंक्शन किया हुआ था होटल में। अच्छा जी। उन्होंने मेहमानों को अफ्तारी करानी थी। अच्छा जी। तो मलक फरियाद औरों की मैं गड्डियां भी दो देता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि फीके तेनू आज अफ्तारी कराइए। मैं क्या है? कहते हैं कि हमने जाना है उधर होटल में, उधर बूफे होना है, बूफे। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था। मैं क्या ये क्या होता है उधर? तो कहते हैं उधर सारे खाने लगे होते हैं। हाँ जी। जितना मर्जी खाई, तेरा सिर्फ 4500 ही देंगे असी। मैं क्या 4500 दे एक बारी खाना? साड़ी ते साढ़े महीने दी गड़ासड़ी आ जाती है 4500 दी। तुम गरीबों को ग्रोसरी कहने का कोई हक नहीं, क्योंकि तुम गरीबों के लिए हम लोगों ने एक फिक्रा छोड़ा जो है राशन। ये अमीर आदमी है। अफसर ने जिथे राशन तकसीम हुंदा उथे लैना सिद्धियां करांदे ने। हाँ, तेनू खुआवांगे आज खाना ते नाल चली तू। नहीं।
उनके उनके साथ वो बंदे जाते हैं ना, तो वो फिर काम करना होता है तो दौड़े लगाते हैं। अच्छा। मैंने फटाफट उनके डाले पे कपड़ा मार दिया, वाह। तो गाड़ी पे भी। तो मैं डाले के पीछे बैठ गया। आए होटल गए थे, अच्छा। हाँ, फुल उड़ते ही जा रहे थे। क्या बात। मैंने उनसे चुप के ना तो डाले के अंदर खड़े होके बड़क भी मारी थी। तो सारे लोग देखने लग गए, तो मैं शर्मिंदा हो गया। हाय हाय। अब बैठ गया। फिर मैंने कहा पता नहीं लोग हमें गालियां ही ना निकालें। तो उधर खाने पे गए थे, तो कहता है कि तुमने उनको ये क्यों नहीं कहा कि मेरे दोस्त को भी ले जाए। वो कहती हैं वो उन्होंने जब बताया कि उधर जितने बंदे जाएं उतने पैसे लेते हैं, हाँ जी। तो ये कोई ब्याह थोड़ा या कि जो अंदर से खाओ रोटियां। वो तो उन्होंने गिनती करनी थी। मैं कहा तू नाल मैनू भी कढावी। कहता मैं नहीं तेनू खड़दा विआहां दे उत्ते जदों मेरे किसी दोस्त दा हुंदा है। हर दोस्त की शादी में मैं तुम्हें साथ लेकर गया हूँ, तो ये अफ्तारी तूने अकेले अकेले जरूर करनी थी। तो मैं नहीं तुम्हें शादी पे लेकर गया था अपने खाला के मुंडे तो की। फिर यहाँ क्या मौत पड़ गई थी तुम्हें? एक शादी पे तो ये था भी नहीं, तो मैं फिर भी शापड़े च गजड़े ला लेके आया। तो फिर अब क्यों नहीं लेकर गए? तो बताया तो है, उन्होंने गिन के बंदे अंदर वारने थे। ਉੱਥੇ ਜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਮੱਲਕ का तुम्हें पता नहीं, मल्लक फरियाद तो कुटना भी शुरू कर देता है। उधर मैंने उसे कहा भी था, मैंने जो होता है उधर वो खाने देने वाले लड़के, वेटर। हाँ खान सामा, उन्होंने मैं क्या सी मैं कहा थोड़ा सा कोड़मा डाल दो शापड़ में। तो आगे से हंसता हुआ चला गया। कहते हैं अब्बू फेकड़न आए हो कि फूफी दी जांजती आए हो। आका तेरा मुंह में आंजे जिवें माल्टे नूं उल्ली लगी होंदी। अच्छा ये तो बताओ कि उधर खाया क्या क्या? उधर तो साड़ा फुल होया आया सी। अच्छा। इधर से शुरू होकर तो खजूरें भी उन्होंने गदामों वाली रखी हुई थी। गदामों वाली के बदामों वाली? हाँ गदामों वाली। मैंने समझा ये मैं ओदे चो गिटक समझ के छुट्टन लगा चाहते मैनू कोलों मलक फरियाद दे मुंडे ने टांट लाई, अब जामे खाओ। गदामा वालियों खजूरें भी थी और साथ उन्होंने समोसे भी, कलचौड़ियां भी, अच्छा। और वो वाले डोल भी, चिकन डोल, और साथ होड़ भी कितनी चीजें थी न, वो छोटियां छोटियां भी थी, और कोड़मा भी था, और हलीम भी, और निहाड़ी भी, और बड़ियानी भी, और यार इतना कुछ था तो मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए? यार तू तो मरदा ही जाना है पिया, तेनू अगे नहीं लेके जांदा। एक बारी ते ना तेनू किसी ने सजाया सी ना मैनू। पहले मैं तंबू दी कनात चुकी है ते ए वड़ गया, फिर इन्हें चुकी है ते मैं वड़ गया। अच्छा तो बिन बुलाए वहां से खाना खाए? उन्होंने बुलाया भी नहीं था, हुआ हम क्यों, हमारे गली के पिछले पासे थी शादी। अच्छा। उते अल्लाह दा शुक्र है जो असी खाना खा लिया सी फिर फड़े गए सा। मुझे वो कहती हैं कि तेनू किन्ने सदिया सी, मैं कहा मैनू नहीं किसे सदिया, मैं ते एनू सदन आया सा। इसकी अम्मी बुला रही है, इसको कहती हैं तेनू किन्ने सदिया सी, और कहते मैं इनू सदन आया सा। उन्होंने फिर समझ लग गई, उन्होंने फिर सानू कुटिया सी। बड़ी गल है यार, बिन बुलाए खाना खाए हो। आपने भी कभी खाया है जांजे चवाड़ के खाना? तो कुट पड़ी थी? नो नेवर।
अफसर को कभी कुट नहीं पड़ती। मैं तुम्हें एक कुलिया बताता हूं, जब ऐसा मौका हो बरात में कुट पड़ने लगे, उनको दुआएं देना शुरू कर दो। जीवे लाड़ा, क्या बात है चौधरी साहब, क्या लग रहे, जीवे मुंडे दा प्यो, जीवे लाड़ा, तो आपको छोड़ देंगे, कहेंगे खाओ खाओ। अच्छा फिर ये तो बताओ कि इतनी सारी जो चीजें थी वो सारी खाई तुमने? दो समोसे खाए थे, क्या बात। हाँ, और एक कचौड़ी भी खाई थी, अच्छा और बिरयानी की प्लेट के ऊपर भी सालन डालिया थी, बोटियों वाला। वाह वाह। और इतना सारा सारे लोगों ने खाना खाया ना, तो कितना सारा बीच में सारा बचा हुआ था। तो मैंने कहा कि ये इधर जाया ही जाना है, ये डाल दो चापड़ में तो कोई खा ही लेगा। मैंने उस वक्त नहीं ना बताया छाने का, मेरा दोस्त है ना, फिर मैंने कहा इसको ही ना पकड़ ले। तो मैंने कहा डाल दो, तो कहता है चलो निकलो इथों। फिर उसने हंस के मेरी बेइज्जती की थी, मैं फिर उन्हें जुगत ला दी थी। मैं कहा तेरा मुंह जी मैं बूट टुटाऊंगा। सारा मैंने कहा जाया हो जाएगा, तो ये भी कोई खा ही ले। तो मैंने मलक साहब के ड्राइवर से कहा, मैंने कहा इनको कहो कि ये सारा खाना डाल दें छापड़ों में, आप लोग ले जाना गाड़। तो उनका ड्राइवर कहते इन्होंने हो सारा वापस पतीलियां च लोद के ते अगला बूफे ला देना। चलो सब कुछ खाए हो ना, ये ईद के बाद मेरे कजन की शादी आ रही है, मैं तुम्हें भी साथ लेके नहीं जाऊंगा। तेरे कजन दे भी आते बारिश ही हो जानी, बारिश ना हुई तो खाना ही कट जाना है। तेरे कजन दे अब्बे ने कहना है कि पहले सारे फैमिली वाले इधर हो जाओ, मेहमाना नू खा लें दो, तुहानू बाद चो देंगे। मेहमाना ने खाना खाना तो मुक जाना, तो फिर तुहानू नान चने। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैंने भी एक ऑनलाइन शर्ट मंगवाई, अच्छा प्लेन थी प्लेन। गुड। वो शर्ट उन्होंने भेजी नहीं, मैंने फिर पैसे भी नहीं दिए। चलिए अली मुमताज साहब, आप माशाल्लाह अक्लमंद पढ़े लिखे इंटेलिजेंट सहाफ़ी हैं, आपकी भी हर चीज़ पर नज़र है जी। आपको भी ये मालूम ही होगा। कुछ अर्सा पहले ना जी, ये जो जेब कतरे होते हैं जी ये बसों में या बाजारों में मार्केटों में रश में ये काम किया करते थे। हाँ जी। अपना काम दिखाते थे, वारदात डालते थे और जेब हल्की करके तो निकल जाते थे। बारातों में भी, हाँ बारातों में भी वही ना, रश वाली जगह। रश वाली जगह। कह दिया मैंने गौरी साहब, I'm sorry, मैंने आपको रश से नहीं बारात याद आती है, आपको कोरमे से याद आती है। यहाँ पे भी रश होता था, वहां पे जनाजों में काट लेते थे, अब भी काटते हैं अभी भी ऐसे। हाँ जी लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे हर पेशा तरक्की कर गया है, इसी तरह जेब कतरों ने भी अब तरक्की कर ली है। अब ये सड़कों में, बाजारों में, मार्केटों में या रश में कम नजर आते हैं, जी जी अब वो भी डिजिटल होते जा रहे हैं। हाँ और बाजार में या बसों में धक्के खाने और ये रील होने की बजाय फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैठकर अपना काम बहाते हैं। हाय हाय समझ लें कि उनका वर्क फ्रॉम होम हो गया हुआ है। पहले वो पैसे निकालने के लिए आपकी जेब में हाथ डालते थे, अब आप खुद मोबाइल के जरिए उनके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। क्योंकि बाजारों में रश, ट्रैफिक, पार्किंग का मसला और फिर रमजान में रोये की हालत में घंटों बाजार में घूमना आसान काम नहीं ना जो होता। बाजार में जेब कतरा पकड़ा जाए तो फिर मार भी बड़ी पड़ती है। बहुत फैंटी पड़ती है, और उस फैंटी के अंदर ही एक बंदा होता है जो पहले उसे कुटता है, फिर उसको कहता है इन्हें छाड़ दियो, इन्हें मैं थाने लेके जाने। और वो आपके हजूम में से उसे आराम से निकाल के ले जाता है, और बाकी सारा हजूम सोच रहा होता है यार किड्डा यालम इन्हें थाने ही फड़वा देने लगा। फिर उथों निकल के तो रक्शे च बह के उन्होंने घर जाके कुटदा है, तेनों इन्नी देर दा मैं काम सिखाण दिया, तेनों हले भी नहीं आया। अच्छा बता, मैं ये रहा था कि अब ऑनलाइन बैठ गए हुए हैं
जी हर बंदा आजकल, आपको भी पता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। हाँ जी लेकिन हमें ये ख्याल नहीं रहता कि जैसे पहले जमाने में ईद की खरीदारी का मसला होता था जी जी कि बाजार में जेब कतरों से बचना है, इसी तरह अब ये मसला जो है ये मोबाइल फोन पे आ गया हुआ है। मोबाइल फोन में बैठे हुए जेब कतरों से हमने बचना है। हाँ जी फर्क सिर्फ ये है कि पहले जेब कटती थी तो बंदा फौरन समझ जाता था कि कटी गई है। हाँ अब फ्रॉड होने के बाद आदमी 2-3 दिन तक खुद को तसल्ली देता रहता है कि ये शायद फ्रॉड था या नहीं था, हाय और फिर ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ मैं लुटिया गया जो। खास तौर पर रमजान में लोगों के पास टाइम कम होता है और काम होता है ये ज्यादा, ज्यादा, हाँ जी। इसलिए जैसे ही मोबाइल फोन हाथ में आता है, जी फेसबुक या इंस्टाग्राम आप खोलते हैं, वहां खूबसूरत कपड़ों की तस्वीरें, ईद के ऊपर बिकने वाले ये शूज, पता नहीं क्या क्या जो भी ईद की चीजें होती हैं, खवातीन की भी और बंदियों की, जी जी वो आपको सामने उसकी तस्वीरें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल और उस पर भी लिखा होता है ईद स्पेशल सेल, हाँ और आखिरी 3 दिन की ऑफर भी लिखा होता है। लिखा होता है बिल्कुल ऐसे ऐसे जुमले लिखते हैं कि इंसान बेचारा जो है ना जी, वो बेसब्रा फिर हो जाता है। बेशक। अच्छा, तस्वीर में कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे किसी फैशन शो में पहनने वाले हैं, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही और कीमत जो लिखी होती है, असल कीमत 6500, अब सिर्फ 1999 रुपये, यानी 6,500 से जब सीधा जंप बजता है 2,000 रुपये, 1 रुपया घट। ये वो लम्हा होता है जब आम आदमी की अकल घास चरने निकल जाती है, हाय और कई लोगों की तो सिर्फ अकल ही घास चरने नहीं निकलती, वो खुद भी साथ घास चरने निकलती। अजीजी, हम आपकी लुक से समझ गए हैं, आपने मुजफ्फर को कहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शायद, बहुत अच्छे बेटा, सही वांडो दा ही लगे तू। मुजफ्फर बेचारे ने की करना है, तो क्या कहते हैं कि चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी पी। गोगे को तुमने कभी खुराक की तरफ जाते हुए नहीं देखा? गोगा रोटी वेल लेना किधरे लगी ते इंज दौड़दा जिवें खोती रेड़ी चो निकल के दौड़ दी। अच्छा, ये जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले हैं ना, इनका तरीकाकार भी कुछ ज़्यादा पेचीदा नहीं होता, बल्कि उनकी कामयाबी के पीछे वजह ये होती है कि उनका तरीका बहुत आसान और सादा होता है। और अली साहब, ऑनलाइन फ्रॉड का सबसे दिलचस्प मंजर वो होता है जब आप कपड़ों का पार्सल खोलते हैं। हाय हाय हाय, और अंदर से ऐसा कपड़ा निकलता है जिसे देखकर इंसान को पहले तो शक होता है कि शायद गलती से किसी और का पार्सल आ गया है, बल्कि कपड़ा इतना मुख्तलिफ होता है कि तस्वीर और हकीकत के दरमियान ताल्लुक सिर्फ इतना ही रह जाता है कि दोनों कपड़े हैं बस। अजीजी, मैंने भी एक ऑनलाइन शर्ट मंगवाई, बड़े प्यारे उस पे छोटे छोटे फूल थे, लेकिन जब मैंने पार्सल खोला तो उसमें इतने इतने बड़े फूल थे जो रजाई पे होते हैं। फिर 7-8 और शर्टा मंगवा के उन्होंने दी रजाई बनवा लो। बस यार, एक घर घर दी स्टोरी है। अजीजी, मैंने भी एक ऑनलाइन शर्ट मंगवाई, अच्छा, प्लेन थी, प्लेन। गुड। वो शर्ट उन्होंने भेजी नहीं, मैंने फिर पैसे भी नहीं दिए। अच्छा, वैसे इसमें बड़ी बेइज्जती है, ये ना सुनाया कर। अल्लाह, तू आर्डर भी दिता होते पहले लुटन बैठे होंगे ने, मगर उसके बावजूद उन्हें तेन मुंह नहीं लाया। अच्छा अजीजी, ये सिर्फ फ्रॉड जो है वो कपड़ों की हद तक महदूद नहीं है, जूतों में भी होता है। आप तस्वीर देखते हैं, तस्वीर में जूता यूं लगता है जिस तरह ब्रिटिश है या इटालियन है, लेकिन जब वो आपके पास आता है, आप पार्सल खोल के जूता देखते हैं तो वो यूं होता है कि जैसे गांव में छाबे वाले नहीं बेच रहे होते। जी हाँ, प्लास्टिक का जूता। हाय बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कपड़ों के बाद सबसे ज्यादा फ्रॉड जूतों में और बैग्स में होता है। हाँ जी जो लेडीज बैग है ना जी, बैग वो ऑनलाइन तस्वीर में जूता ऐसे लग रहा है जैसे किसी बैनुल अक़वामी ब्रांड का है, या जो हैंड बैग और लेडीज बैग होता है जी जी वो भी यूं लग रहा होता है कि बड़ा ब्रांडेड है और बहुत अच्छा है और कमाल है भाई।
हाँ जी, चमकदार, नफीस और मजबूत लग रहा होता है, बिल्कुल और जब पार्सल खोलते हैं, रिसीव होता है हाय हाय हाय, जूता पहनने की बजाय दिल करता है जेड़ा पार्सल लेके आया ना जी, उन वैसे जूते नाल कुटो। अच्छा, ये बात अब करने का मकसद ये है कि रमजानुल मुबारक का महीना जा रहा है, ईद आने वाली है, और ये शॉपिंगें वापिंगें बहुत धड़ाधड़ हो रही हैं, हाँ जी, बिल्कुल और हम चूंकि कोशिश करते हैं कि लोगों को सोशल अवेयरनेस दी जाए कि भाई किस तरह आपने बचना है फ्रॉडियों से। जी, भाई हैरान कुन फ्रॉड हो रहे हैं, हैरान कुन। रमजानुल मुबारक में बाद फ्रॉडी इससे भी बड़ा खेल खेलते हैं, वो मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स की नाकाबिले यकीन ऑफर्स लगा के बैठे हुए हैं। हाँ मसलन 40,000 वाला मोबाइल सिर्फ 15,000 में। जी, बताने का मकसद ये है कि हर एक को जाहिर है आप गलत नहीं कह सकते, मगर जब आप इतनी बड़ी देखते हैं ऑफर या इतना डिफरेंस देखते कैप है, हैं हाँ जी, असल कीमत में और जो सेल में लगी हुई है चीज उसकी कीमत में, जी जी, तो फिर तो अलर्ट हो। बिल्कुल फौरी तौर पे देखें कि 40,000 की चीज जो है ये 15,000 में क्यों लगाई हुई है इसमें। कैसे मिलेगी, हाँ ये वो ऑफर होती है जिसे देखकर हर समझदार आदमी को शक होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, लेकिन उस वक्त देखते ही बंदा जोश में आ जाता है तो खुद को समझाना शुरू कर देता है कि शायद वाकई को खास सेल चल रही हो। हाँ अच्छा, यकीन भी कर लेते हैं और फौरन पैसे भी भेज देते हैं। हाँ बिल्कुल, उसके बाद वो पेज ऐसे गायब हो जाता है जैसे थैले के सर से सींग। नहीं भाई, गधे के सर से सींग। सारी यार थैले गधे के साथ मेरी सलाम दुआई नहीं, मैं क्यों उसका मैं नाम लूं। तुम तो मेरे दोस्त हो इसलिए मैंने फिर तुम्हारी मिसाल दे दी। नहीं, वैसे गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं, बड़ा प्यारा लग रहा है छोटा सा मदरा सा गधा। पोनी गधा पोनी। अच्छा, इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि लोग बहुत सादा हैं। पाकिस्तान में दरअसल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो ऑनलाइन अगर किसी को कोई चीज़ कम कीमत पे नज़र आती है तो वो खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वाह कमाल हो गया, लगता है कि कोई ख़ास मेहरबानी हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और रमजानुल मुबारक में ज्यादा इसलिए ये फ्रॉड होते हैं कि लोग ना जी खरीदारी के हवाले से बड़ी तेजी में होते हैं। हाँ जी, उन्हें लगता है कि अगर अभी भी ऑर्डर ना किया तो ईद निकल जाएगी। हाँ अच्छा, तीसरी वजह सोशल मीडिया का असर है। जब एक पेज पर हजारों लाइक्स नजर आते हैं तो आम आदमी समझता है कि ये जरूर बेहतरीन होगा, सही होगा, हाँ ठीक होगा, बिल्कुल, हालांकि उन लाइक्स में बहुत सारी जाली होती है, हाँ जी सर, बल्कि वो उस कंपनी ने या उस फ्रॉडिये ने खुद ही वो लाइक से भरा होता है बड़ा अपना होता पेज। है, हाँ जी, तो वो बस लोग फिर यकीन करते हैं। और ये वाकई अली साहब आपने बड़ी अहम बात की है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि वो बंदा जो चीज खरीदना चाहता है और उसके पास वो बजट नहीं होता, नहीं है, जब वो इस तरह के पेज के ऊपर वही चीज ऐसी कीमत में लगी हुई देखता है ऑफर में, हाँ जो उसकी रेंज में है, तो वो फौरी तौर पे कहता है कि शायद यार इस दफा किस्मत मेहरबान हो जाए, तो वो बेचारा लुटिया जाता है। हाय, अच्छा, ऑनलाइन फ्रॉड ये इंसानी नफ्सियात को अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि रमजान में लोग ज्यादा जज्बाती होते हैं, ईद भी करीब होती है, हाँ जी, बच्चे कपड़ों की बात कर रहे होते हैं, घरों में तैयारियों का माहौल होता है, जी जी, इसीलिए वो अपने इश्तिहारात में ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं। अपने बच्चों को ईद की खुशी दें, हाँ खवातीन के लिए खास ईद कलेक्शन। कलेक्शन, बिल्कुल, इन जुमलों का मकसद यही होता है, जल्दी जल्दी फैसला अपना महफूज करके तो पैसे भेजो। जी बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।